Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. It's an important thing for people to understand that there is a concept in investing which very rarely talked about, but that is I would like to say that is my invention. There's the concept of return decay. Okay. Return decay का मतलब क्या होता है कि when any stock goes through a period of extraordinary returns, and I've done this data over decades across markets, so I don't want to go into that, is that when you have got a stock that has compounded 40, 50, 60% for roughly 2 to 3 years, okay, then you are going to enter a period of return decay. Okay. What that means is for the succeeding 3 or 2 years, it will deliver you subpar returns. Okay? Because no stock, no market is capable of delivering those returns consistently over 10, 20 years. One will pick up one stock here and one stock there. We are not talking outliers. I'm talking a broad basket. देखो outliers तो हर चीज में मिल जाएगा आपको, कोई भी डेटा सेट लेंगे आपको extreme points मिल ही जाते हैं. Correct? So let's exclude them. That's right. Correct, exactly. Let's talk about the main data set. The main data set is that 50-60% compounding 3 years अगर आपको मिल गया किसी स्टॉक में, you have to take money off the table. So sir, doesn't mean 100% exits, but I would say. Sorry, मैं बीच में interrupt करते हैं. But what about then buy and hold, buy hold, set tight? Because अगर आप निकल जाएंगे और फिर सपोज अचानक से उसके अंदर में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए कि वो वापस चलना चालू हो गए, तो फिर आपके अंदर में फोमो आएगा कि अरे यार ये तो मेरे पास था, मैं तो निकल गया इसमें से. नहीं, I'll give you an example. अभी the BLS International मैंने लिया था 2022 में. Okay, I think maybe 100 rupees, 80 rupees, I forget what price. Today it is 500 rupees. I still own 40% of my original position. अच्छा, तो पूरा नहीं निकले आप? पूरा नहीं निकले तो मैं वही कह रहा हूं, डोंट टेक एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव्स इन मार्केट. आदमी फंसता है एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव्स. व्हाई डू वी हैव टू बी ऑल इन और ऑल आउट? अरे साहब, बीच में बहुत बढ़िया एक स्वीट स्पॉट है कि यार उसके मतलब एक बड़ा मदरशिप आपका बन गया सपोज कीजिए पोर्टफोलियो में, उससे आप छोटे छोटे मदरशिप बना दो ना, बाकी 25, फिर उस 25 में से भी 5 और मदरशिप बनेंगे आपके. So I have still got 40% of my position in that one stock. 60% मैंने धीरे धीरे करके one side was it had tripled. I kept exiting. अब उस exit से cash to cash पे बैठेंगे नहीं. We find other stocks which are not in the return decay phase, where the returns are in the future, not behind. So that is the way over time एक mothership, 2 mothership से आप छोटे छोटे बच्चे पैदा करके आप एक बढ़िया फैमिली बनाएंगे. एंड इन्वेस्टिंग इज अबाउट अ फैमिली. इट इज नॉट अ न्यूक्लियर फैमिली, इट इज अ जॉइंट फैमिली. Lovely. What a beautiful thought process. Investing is like a joint family where you have many characters as part of one family, and you have to have a very strong level of tolerance for each of the characters, no? Exactly. तो ये क्या कि न्यूक्लियर फैमिली कर लिया जी, मियाँ बीवी, बाकी और कोई है नहीं. इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं चलता साहब. एकदम कि 90 ये यूएस में 89% वेर एक्टिव फंड्स इन 1989. ठीक है. 11% पैसिव था और 0 कॉन्ट्स थे. 2023 में 26 एक्टिव है, 39 पैसिव है और 35% कॉन्ट है. अच्छा, हमने ये डीप डाइव स्टडी किया कि इंडिया में क्यों नहीं अभी तक कॉन्ट है. सो अब मैं पीएमएस स्कीम में बताऊं, तकरीबन 1020 पीएमएस स्कीम्स है. हाँ, इंडिया में 1000 प्लस पीएमएस. हाँ, होता है ना कि जैसे एक फंड की मल्टीपल स्कीम्स हो गई. ऐसा फंड हाउस तकरीबन 450 है, उसमें से एक्टिव 250 है और 500 करोड़ के ऊपर तकरीबन 50 से ही है. मीन्स इट इज वेरी स्मॉल मार्केट. तो उसमें से सिर्फ 20-25 schemes are quant based. Okay. Rest every schemes are still
एक्टिव मैनेजमेंट बेस। बट आजकल तो ये लोग सब एक्टिव मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्वांट वर्ड ऐड करना चालू कर दिया। वो एक वो अच्छा लगता है क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड हैज डन वेरी गुड। सो वो, पर मैं आपको जब क्वांट दिखाऊंगा ना, एक्चुअली क्वांट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट क्वांट इट इज, जो बात हो रहा है वो, और वो बहुत डिफरेंस है। ये रियल क्वांट की बात कर रहा हूँ जो यूएस में क्वांट्स है, और इंडिया में आज 82 वर्सेस 17 है, और क्वांट 1% भी नहीं है। सो ये एक पूरा बहुत बड़ा जोन है जो इंडिया में नेक्स्ट 10, कोई बोलता है ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन सा सबसे बड़ा कलूट के अपॉर्चुनिटी है, इट्स क्वांट ड्रिवन फंड्स, वेयर जस्ट आई विल टेल यू द सिंपल वे ऑफ क्वांट। ETF क्या है? इट्स क्वांट, इट्स एन ऑटो फ्लश थियरी। आज भी 2008 का जो निफ्टी होता हमारे पास, तो आज भी निफ्टी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता, सुजलॉन होता, रिलायंस पावर होता, तो वो तो है ही नहीं। एंड दैट इज द रीजन वी हैव सीन निफ्टी टू बी 25,000, बिकॉज न्यू कंपनीज कम, तो वो जो पुरानी है वो ऑटो फ्लश हो जाती है। पर यही चीज, इसीलिए ETF बढ़ता है, मार्केट बढ़ती है, पर पोर्टफोलियो ऑटो फ्लश नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो भी सोच रहे हैं कि नहीं ये कंपनी तो बढ़ेगी, हाँ थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। सो दिस वाज नॉट आवर डेटा, ऑफ कोर्स PL कैपिटल। अच्छा एक बात बताइए, ये क्योंकि आपने बात छेड़ दी तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक बहुत इंडस्ट्री वाइज ये आर्गुमेंट चल रहा है कि पैसिव वर्सेस एक्टिव, सब नए फंड जो मॉडर्न फंड्स लॉन्च हो रहे हैं वह पैसिव की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के अंदर में ऐसा आने वाले 5 साल का बात करते हैं, 50 साल की बात नहीं करते हैं। आपको लगता है ये एक्टिव इररिलेवेंट हो जाएगा और पैसिव ही चलेगा, पैसिव ही रिलेवेंट होगा, रिटर्न का जनरेट करेगा, या आपको लगता है क्वांट इज एक्चुअली अ बेटर इज अ मिड ऑफ द मॉडल? ओके, बिकॉज जिसको ETF के फीचर्स चाहिए और उसको थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, अच्छा, वो दोनों का मर्ज ओके, वो क्वांट है, इज क्वांट। बिकॉज एक्टिव, इसमें क्या है, इंडिया में क्यों अभी तक क्वांट नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया के पास इतना डेटा ही नहीं है क्वांट बनाने के लिए। एटलीस्ट यू नीड अ डिकेड प्लस डेटा टू मेक अ क्वांट। तो इंडिया के पास अभी नाउ, बिकॉज ऑफ गुड एप्स, गुड पॉइंट, कि अभी डेटा हैज बीन, पहले तो क्या था, डेटा किसके पास था? जिसके पास ब्लूमबर्ग था, कैपिटल लाइन था, ये 2-3 कंपनीज थी। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल लाइक स्टॉक एड, स्क्रीनर, एवरीथिंग हैज गॉन सो रोबस्ट पॉइंट, तो सबको डेटा पता है क्या है। सो दैट इज द रीजन कि अभी नेक्स्ट 10 years quant will be more higher because data is already there. Got it. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारे फंड्स नजर आते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ द लीडर्स इन दिस स्पेस। तो क्वेश्चन ये आती है कि कैसे सिलेक्ट करें कौन सा फंड? और लोग बोलते हैं फंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर, और आई थिंक जो जनरल परसेप्शन में आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप ये करेक्ट कर दे। आई थिंक मैं अगर डेटाबेस देखूँ तो 10,000 फंड मैनेजर्स होंगे, जो कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, या वगैरह। अब कैसे पिक करें कि ये फंड मैनेजर अच्छा है, इसके ऊपर इसको पैसा डालो? सी अगेन, फंड मैनेजर, फंड हाउस, ये सब इंटरचेंजेबल चीज़ें हैं। कई बार हमने देखा है कि टीम की वजह से बंदे का परफॉर्मेंस आता है, उसको आप साइड में खड़ा कर दो तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे आउटस्विंगर फेंक सकते हैं, बट जब तक स्लिप में कोई ऐसा बंदा नहीं खड़ा हो जो कैच ले पाए, तब तक आपके आउटस्विंगर की क्या फ़ायदा? सही बात है। तो फंड मैनेजर तो फेस है, उसके पीछे पूरी रिसर्च की टीम है। आपको लगता है कि हाँ ये बॉलर कितना अच्छा है, इसने इतनी विकेटें ली, भाई उसकी सारी जो कट हो रही थी वो चौके पे जाती है अगर ये ऐसा फील्डर नहीं खड़ा होता। तो आपको फंड हाउस, फंड मैनेजर, तीनों को एक साथ देखना चाहिए। सेकंड चीज, रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस पे तो नहीं आती। मैंने कल सेंचुरी मारी थी इसलिए आज भी सेंचुरी ही लगनी चाहिए, ऐसा तो कोई बर्थराइट है नहीं। यहाँ पे तो 3 सेंचुरी बाद चौथी बार 0 पे भी आउट हो सकते हैं। तो वो तो हर गेम अलग अलग तरीके से खेलनी पड़ती है। बिल्कुल वैसा ही है, फंड का पोर्टफोलियो डिटरमाइन करेगा आगे क्या रिटर्न बनने वाला है, ना कि पिछला परफॉर्मेंस। तो आपको एक ऐसा नॉलेज चाहिए जो फंड के पोर्टफोलियो देख के डिसाइड कर सके कि हाँ ये लेना है, ये नहीं लेना है। अब कोई गारंटी तो फ्यूचर की है नहीं। आज मैं कितने भी विश्वास से कहूँ
बट कल क्या होगा मुझे क्या पता है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है कि किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में आपका पोर्टफोलियो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे। तो अगर आपके पास समय और समझ है तो खुद ये एनालिसिस करिए, नहीं है तो जो प्रोफेशनल है, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके जरिए निवेश करिए। लोग यहाँ पे पिछला परफॉर्मेंस देख के निवेश करने की सोचते हैं, बट ये नहीं सोचते कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको कहाँ पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड के समय में देखा था कई लोगों ने रिडम्पशन कर दिया, जो नोशनल लॉस था उसको रियल लॉस बना दिया। जो आंख बंद करके लेने का समय था उस समय उन्होंने बेच दिया। अब उन्हें पैसों की जरूरत थी बिल्कुल नहीं, उन्होंने डर के मारे बेच दिया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइफ, दैट वाज द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोविड के समय में भरपूर खरीदा, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोविड में कुछ नहीं किया, जो चलता था चलने दिया। ऑब्वियसली जिसने खरीदा उसने ज्यादा पैसे बनाए, जिसने कुछ नहीं किया उसने थोड़े कम बट पैसे जरूर बनाए। और जिन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी बाय सेलिंग ड्यूरिंग कोविड, उनका तो बड़ा नुकसान हो गया। तो मार्केट कहाँ जा रहा है ये छोड़िए, पहले आप अपने आप को समझिए कि भाई आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो कोविड के समय डर के मारे बेच देंगे, तो फिर आपकी पोर्टफोलियो अलग होगी, आपके लिए स्कीम अलग होगी। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर जिसने कोविड में बटोरा, तब आप स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक, सेक्टरल सब फंड में निवेश करिए, आपके पास जोखिम लेने की क्षमता है। अगर आपने कुछ नहीं किया बट जो चल रहा था, आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, फिर आपके लिए स्कीम अलग अलग होगी। तो अपनी फितरत को पहचानिए, उस फितरत के अनुसार निवेश करिए अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने के लिए। अब कोई ये कहे कि मुझे बिल गेट्स जैसा धनी बनना है, तो भाई उस गोल का तो कोई इलाज नहीं है, फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी कर, निवेश करके तो तुम बिल गेट्स शायद नहीं बन सकता। समझ गया सर। मैंने एक ना लास्ट 10 साल का डेटा एनालिसिस किया था, और मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में फंड इनफ्लो जो है ना उसको कंसिडर किया था कि कितना पैसा कब आया। और मैंने एक चीज़ देखा कि सर जब पीक मार्केट होता है तो पैसा सबसे ज़्यादा आता है, और जब मार्केट डाउन होता है तो उस समय निकल जाता है, माइनस हो जाता है, जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरेज रिटर्न जनरेटेड बाय अ टिपिकल SIP रिटेल इन्वेस्टर, जो हम पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं ना सर कि 15%, 18% रिटर्न जनरेट किया अगर मैं 5 साल का पीरियड देखूं तो, बट एक्चुअली वो रिटर्न नहीं है उतना। रिटर्न इज वे लेसर बिकॉज ऑफ दिस नेचर सर, कि पीक में बहुत पैसे डाल देते लोग, और जब गिरते हैं तो या तो बंद कर देते हैं डालना या निकालना चालू कर देते हैं, which you are strictly saying कि यार ये नहीं करना चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं करूंगा ही तो करूंगा ही, फिर आप SIP नहीं रोक सकते हैं एटलीस्ट, राइट सर? सो अगेन, अगर सपोज आपको बम्बई से जयपुर जाना है, हाँ, और आपने टिकट काटी, प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन में बैठ गए, अब सडनली बॉम्बे सेंट्रल पे बैठ के देख रहे हैं कि बाजू की विरार लोकल ट्रेन तो आगे जा रही है, आपने जयपुर वाली ट्रेन छोड़ी और विरार वाली ट्रेन में बैठ गए, तो आप विरार तक ही पहुंचोगे, फिर जयपुर नहीं पहुंचोगे। अब आप चलो जयपुर वाली ट्रेन में ही बैठे रहे, बोरीवली स्टेशन पे पहुंचे, वहां पे देखा कि इसके पीछे आने वाली एक मेल ट्रेन थी अहमदाबाद की, वो पहले निकल गई, तो आप जयपुर वाली ट्रेन छोड़ के अहमदाबाद वाली ट्रेन में बैठे, तो भाई आप अहमदाबाद तक ही पहुंच पाएंगे, फिर उसके बाद चल के जाना है जयपुर। तो अगेन लोग गलती यही करते हैं कि अपने आसपास में जो ट्रेन या गाड़ी तेजी से जा रही है उसमें छलांग मार देते हैं, फिर पता चलता है कि वो तो ट्रेन रिवर्स में जाने वाली थी, तो अपने निर्धारित मंजिल के ऊपर नहीं पहुंच पाते। मैं अगेन बार बार यही कहूंगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल देखिए, रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, अगर आपने गलत ट्रेन बैठी है तो फिर आपको नुकसान होगा। सेकंड, इन्वेस्ट विथ अ गोल, अगर जयपुर पहुंचना है तो जयपुर के टिकट लीजिए, फिर अहमदाबाद के टिकट लेने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड, सफर के लिए समय लगता है, आप ये सोचो कि अरे ये ट्रेन इतनी धीरे धीरे जाएगी तो मैं कब पहुंचूंगा, अरे भाई वो स्पीड पकड़ लेगी, तू बैठा रहे ना, चिंता मत कर कि वो ड्राइवर क्या कर रहा है, सो गया, चालू नहीं की, इतनी स्लो क्यों है, भाई उसके ऊपर भरोसा रख।
तो जो चीज आप अपनी ट्रेन की जर्नी के लिए करते हैं वही आपको निवेश की जर्नी के लिए करना है, कोई अलग चीज नहीं है। क्या ब्यूटीफुल एनालॉजी है सर। वर्ल्ड विल कम एंड वांट कि आप उधार ले लो। आप T+5 में उधार ले लो, आप क्रेडिट कार्ड से उधार ले लो, आपको फोन आएगा, आपका क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है फ्री में, राइट, आप MTF ले लो। बट लेवरेज के ना कुछ लॉजिक्स हैं। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 50 रुपये मेरी जेब में है और 50 रुपये मैंने किसी से फंड करा लिया, 100 रुपीज़। बैड टाइम आया मार्केट में, 20 रुपये मेरा स्टॉक चला गया, 9 रुपये 18%, जनरली 12 से 18% का ब्याज लगता है मार्केट में। 18% से गिनो तो हो गया 9 रुपये, तो 20 रुपये तो मेरे को स्टॉक में लग गए, 9 रुपये खर्चा बैठ गया, इंटरेस्ट का कॉस्ट बैठ गया। 30 रुपीज़ राउंड फिगर में गिन लेता हूँ। मेरे तो 50 ही रुपये थे, 50 पे गए कितने, 30 चले गए, बचे कितने 20 से 50 आना 2.5 गुना। बहुत स्किल्ड आदमी भी नहीं बना पाएगा ये पैसे। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती है। और लेवरेज हमको लगता है वाह, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का एक ऐड देख रहा था मैं फेसबुक पे, 400x लेवरेज। मतलब 1 रुपया तो 400 का पोजीशन लो। मतलब 0.25% का मूव आया और आप बैंकरप्ट हो जाओ। और पता है ये ऐसे कॉल्स आते हैं एंड दे सेल ऑन दिस कि विल प्रोवाइड यू लेवरेज। तो दुनिया उधार देने बैठी है। तो कोई अगर ये बोल दे आपको कि मैं आपको लेवरेज देने के लिए आया हूँ, उसी समय आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि आदमी के साथ काम करना है कि नहीं करना। अब अपन लेवरेज की रूल बुक पे बात करते हैं। अच्छा, उसका भी रूल है? उसकी रूल बुक, ठीक है। एक तो लेवरेज किसी और की सलाह पे नहीं होगी, खुद की सलाह से। अच्छा, ठीक है ना। उसने बताया स्टॉक ले लेना और मैंने लेवरेज ले ली, मैं गया। अच्छा, ठीक है। फिर लेवरेज है ना खुद के स्किल सेट से होती है। अच्छा, लेवरेज है ना लॉन्ग टर्म पीरियड्स पे नहीं होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड्स पे होती है, मीडियम टर्म पीरियड्स पे होती है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। अभी आप मार्केट्स के ओवरऑल रिटर्न्स देखोगे तो 12, 15, 18, 20, 21% ही है। और ये कॉस्ट ऑफ फंड है, तो आप कहाँ बचोगे? और एक नेगेटिव पीरियड आया तो MTF में माल भी बिक जाएगा, आपका माल बिक जाएगा, या आपने जिससे पैसा लिया उसको तो चुकाना पड़ेगा, तो आपका माल भी बिकेगा। तो आपको ये बात समझना है कि मैंने अगर अपने एक्सपीरियंस से कुछ सक्सेस बिल्ड करी है तो फिर मैं उस पर लेवरेज लूँगा। मैं लेवरेज लेता हूँ बट वेरी शॉर्ट पीरियड, अपॉर्चुनिटी सुपरबली क्लियर, विद माई ओन एक्सपीरियंस, विद माई ओन स्किल सेट। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो ऐप पे जाओ ना, फोरेक्स अट्रैक्शन। तो अब ये खुद को समझना होना पड़ेगा। आपको कोई कितना क्रेडिट कार्ड बेच दे, आप अपना दिमाग लगाओगे ना यार कि मुझे कहाँ यूज़ करना है नहीं करना है, ऐसा तो है नहीं कि गो एड। तो सेम इज हेयर। तो वी स्टार्ट फीलिंग इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। और एट द एंड ऑफ द डे मतलब टाइम इज अगेंस्ट यू। तो आपको समझना पड़ेगा कि बेस्ट ऑफ द टाइम्स में ही मैं उसको उठाऊँ और मेरे खुद के स्किल सेट से उठाऊँ। वेरी गुड पॉइंट। मतलब यू आर वेरी फॉर्चुनेट, इतना लेवरेज अवेलेबल है, बट पहले स्किल तो बिल्ड कर लो उसके बाद करेंगे। सही बात है। और अवॉइड इन यूफोरियास। जब एक्सट्रीम यूफोरिया हो ना तो लेवरेज नहीं करने का। कि आप छोटी कंपनी में या आई मीन ठीक है, सिंबॉलिकली वी आर यूजिंग द वर्ड छोटी बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप, उनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है जो कुछ करना चाहता है लाइफ में, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। जो कि पहले बैंक्स का एक रोल था, राइट। और कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम ने अपना रोल शायद चेंज कर लिया। मे बी लॉ चेंज हुए वैसे, या बैंक्स का रवैया भी चेंज हो गया कि भैया आप पैसा मुझसे ले रहे हो तो आप कोलैटरल में क्या दोगे, आपने नहीं दिया पैसा क्यों नहीं दिया, मैं NPA कर देता हूँ। तो मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने बिजनेस किया एंड बिकॉज ऑफ द बैंक लोन दे आर इन सो मच ऑफ स्ट्रेस। वो बैंक को अपना 15%, 16%, 18% लेना ही है उनसे। उसका बिजनेस खराब हो रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि बैंक मैनेजर का तो रोल ही यही है कि आप नहीं देंगे पैसा तो मैं कल NPA कर दूंगा। तो ये ट्रांजिशन इंडिया में जो हुआ फ्रॉम अ बैंकिंग डोमिनेटेड सपोर्ट टू अ स्मॉल बिजनेसमैन टू अ मोर इक्विटी इन्वेस्टिंग, ये ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बात करें। तो इसमें ना 2-3 और पहलू भी है। जो अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि जो इस ज़माने का जो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं वो एक रिस्क कैपिटल देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है जो US में होता था वो कहीं ना कहीं उस स्केल में नहीं है, बट आई थिंक वो जो चिंगारी है, पहला जो मूव है। आज देखो बहुत सारे मेरे मित्र हैं
जो ऐसी ऐसी कंपनियों में बना रहे हैं पैसा और इन्वेस्ट किए हैं जो शायद कभी कोई नहीं डाल सकता था। तो दैट हैज चेंज्ड। एंड जो सबसे बड़ा आपका जो पॉइंट है ना, बैंकों में प्रॉब्लम क्या है कि आज एक किसान का समझो एक साइकिल खराब हो गया, एक फसल खराब हो गया, तो ज़्यादा उसको क्या है कि सरकार माफ़ कर देती है, इलेक्शन आई तो वैसे ही माफ़ हो जाता है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो हमारा अन्नदाता है, तो आई डोंट वांट टू बैड माउथ देम, बट द पॉइंट हियर इज कि लोग समझते हैं कि भाई बारिश बहुत हो गया या पेस्टिसाइड अटैक ज़्यादा हो गया, वो फसल खराब हो गई, सो आउट ऑफ लार्जर रोल वी सेड ठीक है माफ़ हो गया, अगले साल कर लेंगे। और उसमें भी हर आदमी नहीं होता है, उसके भी तकदीर अच्छे नहीं चाहिए, उस समय उसके चुनाव होने चाहिए तो उसको माफ़ मिल जाता है। बट एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि उसने एक कुछ नया करने का सोचा है, दैट प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर सम रीज़न। देखो एक धंधे में चोरी वो अलग बात है, मैं उस पर डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद चॉइस क्या है, वो तो बैंक सब जब्त कर देता है और जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी सब उसके पीछे लग जाती है। यूएस में क्या है कि आपने एक धंधा किया, फेल हुआ, चैप्टर 11 फाइन किया और दूसरे धंधे पे आ जाते हो, तीसरे धंधे पे, चौथे धंधा सक्सेस ही होता है। यहाँ पे अगर कोई अरे वो पता देख ये पता कौन है, ये अपने पैसे डूबे थे ना वही प्रमोटर ही है, और ये देख ये कौन है, मालूम है, ये सब उस कंपनी में पैसा डाल के ये इन्वेस्टर था पागल, सब पैसे डूब गए। तो यहाँ पे वी फील अशेम्ड बैकिंग अ एमएसएमई कंपनीज और छोटी कंपनी में। तो मेरे हिसाब से फेल होना कोई गलत नहीं है, बहुत आप ट्राई किए, फेल कौन होता है, जिसने एफर्ट डाला वही फेल होता है ना। सो जो चेंज आया है, ये चेंज आया है कि देर आर गुड नंबर ऑफ, यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं जो छोटी कंपनियों में डालते हैं और उनको मतलब दे गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प देम। सो दो मेजर बदलाव आया है, एक तो माइंडसेट का बदलाव है और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज का जनरेशन का जो एंटरप्रेन्योर है वो समझता है मार्केट कैप, और वो ये समझता है कि आई विल बी 80% ओनर ऑफ दिस कंपनी बट आई कैन हैव माई लाइफ पीसफुल, मैं रात को अच्छे से सो सकता हूँ। वो ग्रोथ के लिए 20% डाइल्यूट करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला जैसा एंटरप्रेन्योर वो सोचता है नहीं मैं मेहनत करूँ, उसको क्यों कमा के दूँ, ऐसा इस जनरेशन में फ़र्क है। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। बैंक अपनी जगह में, सी बैंक क्या करती है, आपके पास एसेट है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, मतलब मैं एक कंपनी में पैसा डाला हूँ जिसका फादर रेलवे पोर्टर है, जिसकी मदर घर पे भांडे घसती है, एंड दैट कंपनी केम टू मी इन 2019। वो एक इंजीनियरिंग, कलकत्ता का ये इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट बच्चा था, कुछ 60-70 लाख रुपए का उसका मंथली टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर था, एंड टुडे इज ए सेलिब्रिटी, उसका मंथली सेल 7 करोड़ के है और हिंदुस्तान के मतलब बहुत फेमस ब्रांड है। अगेन आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज पता नहीं इसमें क्या कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट बहुत फेमस नाम है। तो आप नहीं देते तो वो क्या करता है, वो तो कुछ फिर वो भी रेलवे पोर्टर बनता है या कुछ तो करता। आप देखो सबको ये चाहिए कि भाई अमेरिका जैसा इंडिया को बनना है, जापान जैसा बनना है, चाइना जैसे बनना है, उनको बनना है, बट आपने क्या योगदान दिया उस पर, आपने तो कुछ दिया नहीं। आपको पैसे डाल के पैसे डाल के पैसा बनाना जरूरी है, बट देयर इज समथिंग मोर देन दैट। आपने अगर एक ढंग का पैसा बना लिया तो आपका पैसा सोशल इम्पैक्ट करता है, उसके कारण और मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जैसे और 100 लोग बने वैसे जो इस तरह के सोचे, तभी एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। आप बोलते हो यार इंडिया में एप्पल बना नहीं, गूगल नहीं बना, ये डीप सीक यहाँ में नहीं बना, कैसे बनेगा। और ब्यूटी देखो, यहाँ का बंदा अमेरिका जाता है और वो कंपनी का हेड है। आप हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे को देखो जो शार्प लोग हैं, तो अमेरिका के जो टॉप 15-20 ब्रांड है उसमें तो 10-15 तो वही हिट करते हैं। तो ऐसा क्या कोई हिंदुस्तान में नहीं कर पाते, उधर कर पाते हैं। तो एनीवे, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये है कि इट्स ए कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड समय वी आर ओनली जस्ट इट्स मैटर ऑफ टाइम। अपने को इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना भी समय आएगा और बहुत जल्दी आएगा, एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस। सो मे बी नेक्स्ट सेशन जब अपन करेंगे, we'll have a lot more to tell good things about how companies have transformed from a छोटा प्लेटफॉर्म, MSME प्लेटफॉर्म टू लार्जर प्लेटफॉर्म। और अपनी बहुत सारी कंपनियां दिखेगी, बट वी नीड टू गिव सम टाइम टू देम। और जितनी भी बड़ी कंपनी बनी है वो समय लेके बनी है, ओवरनाइट तो कोई नहीं बनी है। बहुत कम कंपनी है जो ओवरनाइट बनी है। अभी सपोज एक
कोई भी एक इंसान है, राहुल है, वो SIP किया जा रहा है और बड़ा पीसफुली किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट गिर गया तो वो विचलित नहीं हो रहा है। अब वो क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देख रहा है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं, वो मुझे लगता है समझदार है। समझदार है, तो वो अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देख रहा है। अब SIP जो कर रहा है वो क्या इस तरह का फॉल में है, कहीं से लमसम पैसा डाल के उसको और डाल देना चाहिए या SIP का क्वांटम बढ़ा देना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी? नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो रकम बढ़ा दीजिए। अच्छा। SIP को हमेशा लोग कांस्टेंट के टर्म्स में देखते हैं कि मैं 10,000 रुपए का SIP करता हूँ। हाँ। आपकी आमदनी चाहे उस समय 50,000 थी या बढ़ करके वो 5 लाख रुपया हो जाए, लेकिन आप वो 10,000 रुपया ही SIP कर रहे होते हैं। हाँ, बराबर है। आमदनी के साथ अपने रकम को बढ़ाइए, स्टेप अप अपने SIP को स्टेप अप कीजिए जी। दूसरा, आपके पास अगर पैसा है तो जरूर लगाइए, लेकिन एक साथ मत लगाइए। जिस वजह से आप SIP कर रहे हैं कि आप एवरेज करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है और आप पहले से SIP कर रहे थे और ये पैसा आप लगा सकते हैं और अगले 10 साल के लिए लगा सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये मौका है, लेकिन साथ साथ डर भी लग रहा है कि कैसे लगाएं, तो 6 से 10 महीने में बांट करके या तो 10 स्टॉक में लगा दीजिए या 2-4 अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। स्टैगर करके लगाना, बाजार में पैसा लगाना गिरते बाजार में बिल्कुल गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है। अगर आप एक साथ पैसा लगाएंगे तो धीरे धीरे लगाइए, ताकि इससे आप उसमें आपको, निवेशकों को केवल एक चीज से बचना चाहिए कि आप कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसके वजह से आप बाजार को कोसते रहें और उसके बाद और आप बाजार से भाग जाएं। क्योंकि जैसे अगर आप 10 लाख रुपए एक साथ लगाएंगे और ट्रम्प साहब अगर कुछ शाम को कुछ बोल दिए और अगर 5% और गिर जाता है तो स्थिति बदल जाएगी, आपका विश्वास कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये 10 लाख देखते देखते 9.5 लाख हो गया और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप इसको स्प्रेड करके 10 महीने में लगाएंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा। तो निवेशकों के बिहेवियर को कंडक्ट करके अधिकतर चीजों को मैनेज किया जा सकता है। निवेशकों को बचना चाहिए कि वो बाजार के पीक पे ढेर सारा पैसा ना लगाए। उसी तरह से बाजार में गिरावट के दौर में गिरावट के बॉटम का वेट इंतजार न करे। हमें नहीं पता है कि बाजार कितने नीचे तक जा सकता है और हमें ये भी नहीं पता है कि बाजार कब घूम करके ऊपर चढ़ने लग जाएगा और कब फिर रुके ही नहीं। जैसे कोविड में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला था कि अब तो और गिरेगा तब लगाएंगे और वो मौका आया ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि निवेशकों को बचना चाहिए। आप एक अपना प्लान बनाइए जो आपके हाथ में है, इसके बजाय कि किसी और के प्लान पे निर्भर कीजिए। थोड़ा टाइम सर SIP डिस्कशन पे और बिताते हैं, बिकॉज कुछ कॉमन नोशंस हैं SIP के जो मुझे लगता है कि आप और उसको या तो क्लैरिफाई करेंगे या इनहेंस करेंगे उसको, कि जनरली SIP जो है वो पीरियडिकल SIP होता है, 7 तारीख या 8 तारीख को कांस्टेंट लोगों का पैसा उसके अंदर में जाता रहता है। वो एक इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कौन सा डेट पे मुझे SIP करना है। कोई और तरीका है सर SIP में थोड़ा क्रिएटिविटी डालने का, कुछ रिटर्न इनहेंस करने का कोई तरीका? मैं सिंप्लिसिटी में बहुत विश्वास करता हूँ जी, और मैं सिंप्लिसिटी में SIP के विश्वास करता हूँ। उसका एक मेजर कारण ये नहीं है कि कोई उससे बेहतर हो सकता है कुछ बेहतर तरीका होता हो, लेकिन SIP का जो सिंप्लिसिटी है वो ऐसा है कि आप कमाते हर महीने, किराया हर महीने देते हैं, गाड़ी का EMI हर महीने देते हैं, मकान खरीद लिया आपने तो EMI हर महीने दे रहे हैं। तो इसलिए निवेश भी हर महीने करना चाहिए। और जब आपकी आमदनी बढ़ जाए और आपकी बचत बढ़ जाए, अगर आपका कोई लोन पूरा हो रहा है, गाड़ी का लोन खत्म हो गया, अब आपका ज्यादा बचने लग गया, तो वो रकम बढ़ा दीजिए। लंबे समय का पैसा आपका इक्विटी में लगना चाहिए। तो ये जो आपके इनकम के साइकिल से मैच करना, आपके बचत के साइकिल से मैच करना, और जो ये SIP का सिंप्लिसिटी, अगर आप इसको वैल्यू एवरेजिंग करिएगा, कुछ और कीजिएगा और सस्ते बाजार में आप ज्यादा यूनिट्स ले पा रहे हैं, जो कि हो रहा है। अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे थे और जब बाजार ऊपर था तो आपको कम यूनिट्स मिल रहा था, अभी आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहा है। लेकिन अगर आप गिरे हुए बाजार में ज्यादा पैसा लगाने का कोई प्लान बना के चलते हैं तो ऐसा संभव है, क्योंकि मैंने 2004 से 2008 का दौर देखा है। 2004 से 2008 का दौर जो था, उसके 2-3 साल पहले ही आपकी नौकरी शुरू हुई थी। आपको ध्यान होगा कि मैं उस समय बहुत सारे टेलीविजन वालों के लिए काम करता था। एक मेरा प्रोग्राम चलता था फंडा स्टार न्यूज पे। यस।
तो वहां पे बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक सवाल पूछते थे। तो जब बाजार 10 साल के इंतजार के बाद जब दोबारा 4000 लेवल पे पहुंचा सेंसेक्स, तो बहुत सारे लोगों ने 4000 से 5000 पहुंचने पे अपना बेच दिया। 10 साल से इंतजार कर रहे लोग को जब 25% का मुनाफा हुआ, और जब 5000 से 6000 हुआ, तब फिर दोबारा लोग वापस घूम के आने लगे कि ये तो बाजार रुक ही नहीं रहा है। फिर वो 6000 से 7000 हो गया, 7000 से 8000 हो गया। फिर इस सारे दौर में बीच बीच में 200-400 पॉइंट का गिरावट होता था। 2004 में एक ऐसा समय आया जब वाजपेयी साहब की सरकार बदल गई अचानक। वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सरकार आएगी, नहीं आई, तो एक ही दिन में 10-12% बाजार गिरा था। और लेकिन जो लोग टाइम कर रहे थे वो टाइम ही करते रह गए, क्योंकि वो जो 4000 से जो बाजार जाके रुका नहीं, वो 20000 पहुंच गया। 2008 के जनवरी में 21 तारीख तक बाजार देखते देखते 20800 पे पहुंच गया। और उसके बाद ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर है, उसके बाद जो हमने करेक्शन देखा, जो गिरावट देखी, और उसके बाद 50% की गिरावट देखी, वो एक हाहाकार मच गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए कि अगर आपके पास शुरुआत का पैसा 4 साल पहले का लगा हुआ हो और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपका पैसा आधा हो जाता है, तब भी आपका पैसा दोगुना हो चुका था। इसलिए बाजार को किसी भी बहाना बना, हमेशा आपको लगेगा कोई ना कोई आदमी आपको तरकीब बता रहा होगा कि मैं आपको बताता हूं कैसे टाइम कीजिए। अपने 90% पैसे को टाइम मत कीजिए, कमाइए, बचाइए, लगाइए, और 10% से आपको जो करना है कीजिए, ताकि आपका ओवरऑल बड़ा जो प्लान है जिस पे आप निर्भर करेंगे, क्योंकि इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये जो समाज का परिप्रेक्ष्य है वो बहुत रफ्तार से बदल रहा है। पहले हमारा जॉइंट फैमिली होता था, हम परिवार पे निर्भर कर पाते थे, क्राइसिस नेविगेट कर पाते थे। अभी जो 2-3 बड़ा बदलाव है कि हमारा न्यूक्लियर फैमिली है। हम जितने कम साल काम करेंगे, क्योंकि अब ये जो सरकारी नौकरी और कारोबार का जो जमाना था, जिस तरह से हर इलाके में बहुत भारी कंपटीशन दिख रहा है। आप अगर कोई कारोबार करता होगा तो उसको ऑनलाइन का थ्रेट दिखता है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं तो हमें एआई का थ्रेट दिखता है कि हम जो करते हैं वो तो फटाक से कोई और कर दे रहा है। तो अगर आप ऑफशोरिंग किसी बिजनेस में थे तो वहां पे ट्रम्प साहब का डर लग रहा है, या वहां पे कोई बांग्लादेश और वियतनाम। तो ये जो कंपटीशन जुड़ा हुआ दुनिया, इसका जो असर है, इसकी वजह से अनिश्चितता रहेगी। आप हो सकता है कम साल काम करें, तो ये जो आप 20-25 साल 30 साल जो काम करते हैं, अगर आप 20-25 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, तो आपको इसी अवधि में इंतजाम कर लेना है कि आप 90 साल तक अगर आप जीवित रहे, तो आपके जीवित रहते हुए आपका पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही गंभीर चीज है। आप 30-35 साल कमाएंगे और आपको इसी में 60 साल तक जीवित रहने का इंतजाम कर लेना है। पहला गोल तो आपका ये होना चाहिए। और अगर आप इस नजरिए से नहीं देखें और इसको इस नजरिए से देखने से आपके निवेश के व्यवहार में काफी गंभीरता आ जाएगी। इंटरेस्टिंग। बट ये जो जर्नी है, इसके अंदर में पीपल जस्ट एट टाइम्स गेट कैरिड अवे with so many funds, so many schemes. I was talking to someone yesterday in a get together and that person was saying that मैं 30 schemes में SIP कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? That's a question which he asked. So because ये तरोताजा क्वेश्चन है, तो मैं आपको अभी पूछ लेता हूँ कि उसको मैं क्या जवाब दूँ कि 30 स्कीम में वो SIP क्यों कर रखा है? ये जो सवाल क्वेश्चन आते हैं क्यों कर रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं उसमें आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अभी 30 फंड्स है, अगर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई 30 रीजंस है तो अच्छी बात है। हाँ। अगर रीजंस नहीं है, अगर किसी ने बोला कि ये फंड अच्छा है इसमें पैसे डाल दो, जैसे आपने बताया कि टॉप में अभी ये दिख रहा है उसमें पैसे डाल दो, अगर वो भी कर लेंगे तो उसका एंड गोल क्या होगा ये आपको समझना चाहिए। अभी आपने बोला 30 फंड्स है, पर उसमें आपने कैटेगरी नहीं बताई कि उसमें डेट फंड्स कितने हैं, उसमें हाइब्रिड फंड कितने हैं, इसमें इक्विटी फंड कितने हैं। हाँ। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के लिए, किस प्लान से उसमें इन्वेस्ट किया गया था, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। और एक चीज होती है कि अगर आप इतने सारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो जो एक डाइवर्सिफिकेशन का होता है बेनिफिट, कि फॉर एग्जांपल आपको एक ही फंड की अगर रिस्क नहीं लेनी है, अगर एक ही फंड मैनेजर की स्टाइल की रिस्क नहीं लेनी है
और आपको लगता है कि मे बी और एक बंदा है वो भी अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है उसके म्यूचुअल फंड थ्रू से, तो मे बी मैं उसमें भी थोड़े से पैसे डाल दूं, तो ये थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। बट एक पॉइंट के बाद वो जो बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का वो निकल जाता है। तो आप देखोगे कि वो 30 फंड भी अगर इक्विटी फंड्स भी होंगे तो उसमें से जो टॉप 10 या 15 स्टॉक्स जो होंगे जिसमें इन्वेस्ट किया होगा वो फंड्स ने, वो अगर सेम है तो आप इसेंशियली सेम ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो बट 30 जरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन का, जो वोलेटिलिटी कम होती है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, उसका बेनिफिट थोड़ा कम होगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि नंबर ऑफ स्कीम्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर समझ में आता है कि किस स्कीम में डाला है आपने पैसे फॉर व्हाट रीजन, देन इट्स फाइन। पर अगर आपने ऐसे ही लिस्ट बना के रखी है इन्वेस्टमेंट्स की तो देन थोड़ा प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको। जी, इनफैक्ट मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनके स्कीम्स को सारे डिटेल्स को मैंने स्टॉकेज में डाला। हमारे ऐप में वो एक फैसिलिटी है, वो बता देता है कि आप किस किस स्टॉक में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रखे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे 410 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं because of his investment in 30 schemes. Now, how does it make sense? Why do we really invest in 400 stocks when empirically it is proved कि 25-30 स्टॉक के बाद में अगर आप और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सबकी है रौनक भाई, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप किसी भी मतलब रिलेटिव से पूछ लो, कहीं पर भी पूछ लो, सब मोटा मोटी एवरेज में 15-20 स्कीम में इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि इसने बोल दिया था उसने बोल दिया था। इसको आप रैशनलाइज अगर क्वांटिटेटिवली करें कि व्हाट डू यू थिंक इफ आई हैव टू आस्क यू कि आपने कितने में कर रखे हैं? आपका तो सारा पैसा वैसे वहीं लगा हुआ है, आप ही के फंड में लगा हुआ है। Yes, मेरा मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फ्लेक्सी कैप एंड पीपीएफएस, जो बाकी स्कीम्स है उसमें जी। पर ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसके लिए ना कभी कभी ऐसे होता है कि हम नंबर देखते हैं तो उसमें एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही है, या फिर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट होगा उसमें अगर लग रहा है इन्वेस्टर को कि ये ओके रिटर्न दे सकता है बट उसमें और मुझे पैसे ऐड नहीं करने हैं, तो उसी कारण कोई एसआईपी स्टॉप करके वो इन्वेस्टमेंट वैसे रख देंगे। वो भी ठीक है अगर आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको रिडीम नहीं करनी है अभी ये टाइम पे, तो टैक्स क्यों भरे उसके ऊपर, तो रिडेम्पशन ना करके आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। और अगर कंपाउंड हो रहा है वो मनी, एकदम ही कुछ गलत नहीं हो रहा है वो फंड में, तो कोई बात नहीं, इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बट वो आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि ये मनी जब रिडीम करेंगे तो सबसे पहले ये पुराने वाले स्कीम्स रिडीम करे, ताकि आपके नंबर ऑफ ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कम हो जाए। पर ये 400 स्टॉक 500 स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सारे फंड हटा दे बोर्ड से और अगर देखिए कि इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, अभी अगर निफ्टी 500 जैसा कोई इंडेक्स है जिसमें टॉप 500 कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं, या ग्लोबली जब बोलते हैं कि S&P 500 सबसे बड़ा जो इंडेक्स है उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर भी 500 स्टॉक्स है। ऑफकोर्स उसमें से जो स्टार्टिंग के स्टॉक्स है 25 स्टॉक्स जो रहेंगे उसमें से रिटर्न आएगा, पर वो एक इंडेक्स है। सो बेसिकली आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इतने सारे फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स फंड जो थोड़ा सा लो कॉस्ट भी होगा और सेम आपको अचीवमेंट होगा उसमें रिटर्न्स का ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि 30 फंड्स के 30 फंड अगर आउट परफॉर्म करते हैं तो फिर ये 400 स्टॉक्स की जो पोर्टफोलियो है 30 फंड्स में से वो बेनिफिट कर सकती है। बट ये काफी इफ बहुत है उसमें, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती इक्विटी में। यहाँ पे हम जो सोचते हैं वो हमेशा वैसे ही होता है, इसकी गारंटी नहीं होती। जी जी जी। देयर आर सम पीपल हु आर नाउ एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो फ्रीक्वेंटली अपने म्यूचुअल फंड में रीबैलेंसिंग करते हैं कि यहाँ स्कीम से निकाल के मैं दूसरा स्कीम में निकालता हूँ। एंड आई मेट फ्यू पीपल, दे हैव जनरेटेड एक्स्ट्रा अल्फा बिकॉज ऑफ दैट। तो एक SIP करके आप चलते जा रहे हैं 15-16% CAGR जनरेट हो गया, दैट्स ओके। बट सम पीपल हैव क्रिएटेड दैट यूनिक एज कि मेरे को 18-19% भी मैं केवल म्यूचुअल फंड में रीबैलेंसिंग करके जनरेट कर सकता हूँ, नॉट गोइंग इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली। तो ये इज इट अ गुड आइडिया टू एलोकेट सम टाइम, मे बी वीक के 4-5 घंटे देके थोड़ा एक्टिवली म्यूचुअल फंड को भी मैनेज करें? सो ये हम रियर व्यू में देख के जब बात करते हैं ना गाड़ी में कि पीछे हो चुका है ऐसे, किसी ने अचीव कर लिया, उसका ऐसा मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। तो रीबैलेंसिंग का एक सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। कोई फंड्स में एग्जिट लोड होते हैं। जैसे अगर आप रिडीम करते हो कोई समय के पहले तो आपको एडिशनल आपका NAV थोड़ा कम होता है रिडेम्पशन के टाइम पे, वो उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। वो इसके लिए होता है कि अगर म्यूचुअल फंड ने
प्रायोरिटाइज किया है कि लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करे, तो वो एग्जिट लोड एक डिटेरेंट बन जाता है कि लोग जल्दी चर्न ना करे फंड से बाहर। वो एक कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है वो है टैक्सेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म टैक्स भी लेते हैं 12.5% जो कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म टैक्स होता है, वो 12.5% एक आपके प्रॉफिट के ऊपर ड्रैग है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। सो नेट ऑफ टैक्स अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, सबसे पहली चीज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है, और दूसरी चीज अगर हो भी गई तो आपका वो नेट ऑफ टैक्स रिटर्न अगर सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए तो ठीक है, आप उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर आप गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको समय नहीं है ये एक्टिवली ट्रैकिंग करना। अगर आप एक्टिव ट्रैक कर ही रहे हैं तो मे बी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपका व्हाटएवर आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा उसमें से बन सकता है। क्या है वो सीक्रेट सॉस आपके अंदर? तो सीक्रेट सॉस तो नहीं है कुछ, इट्स अ प्लेन सिंपल क्लासिक ओल्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हम लोग कोई व्हील को रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग की फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि उस कंपनी को पैसा दो जहां पैसा बनेगा, छोटी कंपनी हो जहां हमें दिखता है कि ये कैपिटल देने से वो बड़ी हो जाएगी। कितनी छोटी सर? कोई बेंचमार्क नहीं है, 50 करोड़ की टॉप लाइन होगी हम तब भी सपोर्ट करते हैं, और हमने किया है। हिस्टोरिकली आपने 50 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी को भी इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल किया है। हमने द्रोणाचार्य में इन्वेस्ट किया था आईपीओ से पहले, तब उसका 10 लाख का प्रॉफिट था, अभी 7-8 करोड़ पे पहुंच गया है। ड्रोन सेक्टर हैज नॉट टेकन ऑफ बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। बट देन एक और कंपनी हमने इन्वेस्ट किया था EFC इंडिया लिमिटेड, उसके बाद 85 करोड़ की कैपिटल पे वैल्यूएशन पे डाला था, अभी 3,500 करोड़ है। वाह! और यहाँ से भी मेरे को लगता है कंपनी अच्छा कर रही है तो अच्छा करती रहेगी, तो हम तो बैठे हुए हैं देख रहे हैं। ऐसे ही कलकत्ता की आपके एक्चुअली पहली इन्वेस्टमेंट हमारे फंड की कलकत्ता में थी। अच्छा, लवली। सो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड अन्नपूर्णा स्वादिष्ट। तो हमने प्री IPO में डाला था, 70 रुपये पे IPO आया था। हम लोगों ने IPO में भी पार्टिसिपेट किया था। तो प्री IPO हमने कुछ आई थिंक 42-43 पे डाला था, तो डिड वेरी वेल फॉर अस। तो उसकी भी थोड़ी यूनिक स्टोरी थी, अच्छी लगी, प्रमोटर से मिले, अच्छा लगा। फैक्ट्री देखने गए, थोड़ा समझ में आया कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, तो वी टिपिकली सपोर्ट सच एंटरप्रेन्योर्स। लवली। सो इज इट देन कैन आई से कि आपका फंड जो है वो प्री IPO अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग के बाद, लिस्टेड होने के बाद में? अर्ली स्टेज में नहीं कहूँगा, वी डोंट डू अर्ली स्टेज। सो अगर मैं उसको डिफाइन करूँ, एक सिंपल 5 पैरामीटर हम लोग देखते हैं बिफोर डूइंग अ डीपर डाइव इनटू अ कंपनी, कि उसका जाके डिटेल में एनालिसिस करें, जाके विजिट करें। तो पहला तो है कि प्रमोटर कौन है, फाउंडर कौन है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एथिक्स कैसे हैं, थोड़ा रेफरेंस चेक करेंगे उसके बारे में। क्योंकि जब छोटी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो आप घोड़े पे पैसा डाल रहे हैं, और वो घोड़ा आपका फाउंडर प्रमोटर है, कंपनी का मैनेजमेंट है, उसकी मैनेजमेंट के नाम पे प्रमोटर ही होता है छोटी कंपनी में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग लॉस को फंड नहीं करेंगे। ओके। सो कंपनी हैज टू बी प्रॉफिटेबल, चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट हो, बट नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कैश फ्लो पॉजिटिव, एबिटा पॉजिटिव, पैट पॉजिटिव। ओके। सो दैट्स अ सेकंड बेंचमार्क। थर्ड बेंचमार्क इज कि आइडियली उसमें PVC का पैसा नहीं होना चाहिए। ओके। होता क्या है कि हालांकि हमारा अप्रोच प्राइवेट इक्विटी की तरह है, बट द मोमेंट यू गेट अ लार्ज चेक फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर और अ VC इन्वेस्टर, जिसे हम सीड कहते हैं या सीरीज A कहते हैं, जो मैंने देखा है 90% कंपनीज कभी पैसा नहीं बनाती हैं उस सेगमेंट में। तो सबसे पहले जब उसको बड़ा चेक मिलेगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रमोटर की गाड़ी चेंज होगी, घर चेंज होगा, फिर महंगे लोग हायर होंगे, थोड़े कॉर्पोरेट स्टाइल के, ऑफिस नया अच्छा बन जाएगा, तब तक सीड कैपिटल खत्म हो जाता है। फिर आप सीरीज A करते हैं तो वो कैपिटल बर्न इतना ज़्यादा है कि कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज नहीं होता। हम लोगों को चाहिए एकदम बूटस्ट्रैप बिजनेस जो कि प्रॉफिटेबल हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर PVC का पैसा तो हम कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे, बट उसको थोड़ा और माइक्रोस्कोप में देखेंगे। चौथी चीज़ जो हम कंपनी में देखते हैं कि कंपनी अगर इंडस्ट्री 10% पे ग्रो कर रही है तो आपकी कंपनी 20-25% से ग्रो करनी चाहिए। तो आपके पास कैपिटल है नहीं, कभी मिला नहीं, इसके बावजूद आप 20-25% से ग्रो कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कैपिटल मिलेगा तो आप किस ट्रेजेक्टरी पे ग्रो कर सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। पांचवा,
आपका मार्केट शेयर जो भी सेक्टर, सब सेक्टर, जोग्राफी में ऑपरेट कर रहे हैं बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि जब आपको कैपिटल मिले, अगर आपका आज 0.1% मार्केट शेयर है और वो बढ़ के 1-2% हो जाता है, तो उसी में ही आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं अन्नपूर्णा स्वादिष्ट का एग्जाम्पल लूँ, सिंस कलकत्ता में आया हुआ हूँ, तो उसका मॉडल बड़ा यूनिक था। मार्केटिंग का खर्चा नहीं था। कलकत्ता में आपको मिलेगा नहीं, कलकत्ता की कंपनी है, तो गांव में बेचते हैं। आपको हर छोटे गांव में, कस्बे में अन्नपूर्णा के स्नैक्स मिल जाएंगे, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो मूंगफली हो, या फ्रायम्स हो, या कुछ भी हो। उनका मॉडल था कि 5 रुपए का पैकेट है, तो गांव में फटाफट बिक जाता है, और हर पैकेट में स्क्रैच कार्ड है। ओके, तो स्क्रैच कार्ड में गांव में कभी किसी का साइकिल निकल गया, किसी का फोन निकल गया, या 20 रुपए निकल गए, तो गांव सब सामान खरीदने आ जाते हैं। तो मॉडल बड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू हल्दीराम्स ऑफ द वर्ल्ड, सो टू से, और प्रॉफिटेबल था। एंड प्रोमोटर की कन्विक्शन काफ़ी थी, एक्सपेंशन प्लान वर क्लियरली विजिबल। सो दिख रहा था कि ये, इसको इतना कैपिटल मिलेगा, एक्सपेंशन होगा तो अच्छा ग्रोथ आएगा, एंड दे हैव डिलीवर्ड, एंड यू नो वी हैव एग्जिटेड नाउ। बट 400 के आसपास हमने एग्जिट किया था। ओके, तो अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज 7x हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 2 साल में, विच वॉज अ वेरी गुड रिटर्न बाय एनी पैरामीटर्स। और आप माइंड नहीं करें, मैं पूछूं आपने एग्जिट क्यों किया था? वो क्या ट्रिगर था? सो 400-450 के बाद वहां से 6-7 गुना होता नहीं नजर आ रहा था जल्दी। अच्छा, और आपका बेंचमार्क है कि 6-7 गुना होना चाहिए, तब रहे क्या फायदा है? विश लिस्ट रहती है। ओके, हर कंपनी में अगर 10 में डालेंगे तो 2-3 में टूटेगा भी, 3-4 में एवरेज रिटर्न बनेगा, 3-4 मल्टी बैगर निकल के आएगा। बट सर, शुरुआत जब करते हैं इन्वेस्टमेंट, तब 6-7 गुना एक्सपेक्ट करना रीजनेबल है, बट जो ऑलरेडी 6-7 गुना हो गए, उससे और 6-7 गुना एक्सपेक्ट करना सही है? सी, अगर आपको उसके बाद 25-30-40% की ग्रोथ नजर आ रही है, हाँ, तो करेंगे। लाइक आज मैं बोलूँ, हम वापस से सोच रहे हैं कि इसको we have re-looked at the investment. अच्छा, उसके बाद थोड़ा स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया, अच्छा, कुछ एक्विजिशन हुई, तो भी रोड मैप चेंज हो रहा है। अच्छा। सो एंड ऑफ द डे, यू नो, आई ऑलवेज से इन्वेस्टिंग में इमोशंस नहीं होने चाहिए, ई साइलेंट होना चाहिए इमोशन का। सो यू हैव टू जस्ट एक्ट। सही बात है, मोशन होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। लवली। इमोशन लाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इमोशन रखें आप फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए। अब एक और बहुत अच्छा आपको मैं मिथ बताता हूँ। ये 20 साल पहले भी मिथ था और आज भी मिथ है। लोग 10 रुपए के NFO बहुत ज्यादा खरीदते हैं कि 10 रुपए में मिल रहा है। राइट? म्यूचुअल फंड्स में NAVs देखने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो 1000 रुपए की NAV है, चाहे 5000 रुपए की NAV है, 3000 की है। फॉर द सिंपल फैक्ट आपको बताता हूं, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो 50 इंडेक्स की बेस्ट जो भी मार्केट इंडेक्स उसमें डालता है। इसकी NAV 16 रुपए है, और HDFC की निफ्टी इंडेक्स फंड की NAV 200 है। बहुत सारे लोग जाके ये फंड खरीदेंगे और ये नहीं खरीदेंगे, जबकि पोर्टफोलियो एग्जैक्टली सेम है। तो ये लोग स्प्लिट नहीं कर सकता है, जैसे स्टॉक में स्प्लिट होता है कि ये लोग कैलकुलेशन में ऐसे कर देगी, 239 का 23.9 कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है? बट इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें चाहे आप इस फंड में पैसा डालें चाहे इसमें डालें, आपका रिटर्न्स 15 साल में एग्जैक्टली सेम आने वाला है। एग्जैक्टली सेम हो, मतलब पिक्टोरियली जैसे कंपनीज करती है ना, अपना स्प्लिट कर देती है ताकि सस्ता दिखने लग जाए शेयर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जनरली आप स्टॉक्स का खरीदने जाते हो ना, तो आपका दिमाग हमेशा प्राइस पे रहता है, बट म्यूचुअल फंड में NAV का रेलेवेंस ही नहीं है। हाँ, सही है, समझ गया मैं। तो मैं ये सी, फॉर द सिंपल फैक्ट कि HDFC की ये जो फंड आई थी बहुत पहले आई थी, इसलिए 10 रुपए की NAV से चालू हुई और आज 240 बन गए। कोटक का बाद में आया था, तो इसलिए अभी 16 रुपए की NAV है टाइप्स। The same goes with ICICI Pru BSE Sensex। रिसेंट लॉन्च था तो 27 है और उसकी 800 रुपए की NAV है, बट परफॉर्मेंस आपका दोनों का सेम आने वाला है। बट फिर भी आज मैं 21 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं ये नया फंड आया है, 10 रुपए का NAV है, इसमें रिटर्न ज्यादा बनेगा। गॉड, जबरदस्त मिथ है ये। अच्छा कि आपने बता दिया। चलिए, हाँ, सो वो है। देन एक और मिथ है जो आपने शुरुआत में बताई थी कि सब लोग जाके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स चेक करते हैं, लास्ट 1 ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग क्या है, और उसके हिसाब से स्कीम ले लेते हैं। बट ये फंड्स इंडिया करके एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छा रिसर्च करती है कि 2017-19 की जो नंबर 1 टॉप परफॉर्मिंग फंड था, वो अगले 3 साल में उसका रैंकिंग 165 था। आय हाय। 2018 से 20 में जो नंबर 1 था उसका ये था। और तो कहने का मतलब है
आपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग में डाला वो तो हो चुका ऑलरेडी, आपने उसमें पैसा नहीं बनाया है, और अगले 3 साल में कोई गारंटी नहीं है कि वो बेस्ट में रहेगा, और मोस्ट लाइकली वो एक्चुअली में वर्स्ट में चला जाता है, बिकॉज जो स्टॉक्स उन्होंने लिए थे वो प्ले आउट कर गए हैं, राइट? करेक्ट है। तो ये हिस्टोरिकली, और मॉर्निंग स्टार करके एक रिसर्च फर्म है, वो 5 स्टार रेटिंग्स देती है, उन्होंने खुद एनालिसिस किया है कि जो उनके 1 स्टार पोर्टफोलियो फंड्स हैज बीटन 5 स्टार पोर्टफोलियो फंड्स ओवर अ लॉन्ग टाइम इन यूएस। और सारी दुनिया 5 स्टार फंड्स को चेस करती है। यहीं पर ही एडवाइजर्स का कितना बड़ा रोल है, अच्छे एडवाइजर्स का, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 स्टार फंड्स में एयूएम भी बहुत ज्यादा आता है। फिर वो आज आपका मान लीजिए, जब आप एक नॉर्मल फंड परफॉर्म कर रहे थे तो 1000 करोड़ का फंड था, और शायद छोटा फंड था, तो आप उसको अच्छा से कर पा रहे थे। अचानक आपका फंड 5 स्टार हो गया, अब आपके पास 5000 करोड़ आ गए, एंड नाउ यू आर मोर कॉशियस बिकॉज सारी दुनिया आपको देख रही है, है ना? तो आप यू आर नॉट इनटू योर नेचुरल फ्रेम देन। सही बात है। तो फिर आप गलती कर जाते हो। तो ये है बेस्ट परफॉर्मिंग कैन बिकम वर्स्ट परफॉर्मिंग, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जो मैंने आपको बताया जी। 2016 से 18 में 167 नंबर रैंक जो था, वो अगले 3 साल में नंबर 1 हो गया, 113वां रैंक, 160वां रैंक। इतना डाइवर्जेंस है। तो ऊपर का 5 और नीचे का 5 में डाल दें, एवरेजिंग हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या करता हूं, सो आई जनरली सी अ फंड जो 1 साल, 3 साल, 5 साल में बहुत खराब किया है। ओके, देन जस्ट ऐसा नहीं, फिर मैं फंड मैनेजर से बात करता हूं। अच्छा, ओके, कि भाई आपका फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल में खराब किया, क्यों किया है? मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लास्ट 4 साल में वैल्यू स्टॉक्स बहुत चले हैं। करेक्ट। क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं चला, डीमार्ट ऑफ द वर्ल्ड और जो भी हम ले लें। करेक्ट। तो एक फंड मैनेजर जिसका पूरा पोर्टफोलियो क्वालिटी है, तो मैंने देखा वो फंड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में एकदम बॉटम रैंकिंग है, 39 आउट ऑफ 39, 35 आउट ऑफ 35। राइट। तो हमें लगा कि यार अब 4 साल क्वालिटी चला, अब वापस वैल्यू चला, अब क्वालिटी का टाइम आ गया, एक बार फंड मैनेजर से बात करते हैं। हमने फंड मैनेजर से बात की, फंड मैनेजर ने बोला कि यू आर वेरी राइट, वी नेवर डाइवर्टेड फ्रॉम आवर थीसिस, अब हमें लगता है कि अब हमारा टाइम आना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर पोर्टफोलियो इन द लास्ट 1 ईयर। नाइस। सो थोड़ा होमवर्क करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और बिकॉज कनेक्ट है तो बात करते हैं एडवाइजर, मतलब बाकी फंड मैनेजर से, और फिर हम व्यू बनाते हैं कि अब हमें इस फंड में लेना चाहिए कि नहीं, या इस थीम में लेना चाहिए। सो दिस इज, बट अ कॉमन इन्वेस्टर जस्ट वो नंबर 1, नंबर 2 देखते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार देखते हैं और पैसा डाल देते हैं। दैट इज हाउ दे मूव अप एक्चुअली। अब ये एकदम लेटेस्ट अभी जो आर्टिकल्स है 19 सितंबर 2025, India on the verge of a nuclear boom, ये ब्लूमबर्ग ने छापा। Lawmakers are considering to scrap troublesome nuclear power liability. हटा रहे हैं लोग न्यूक्लियर लाइबिलिटी। अदानी तो एज यूजुअल ही इज नंबर 1 ऑफ द ब्लॉक। अदानी ऑलरेडी विजिटेड द तारापुर महाराष्ट्र साइट फॉर दिस। मतलब, और बजट में देखिए 1 फरवरी 2025 को न्यूक्लियर दे विल चेंज द सिविल लाइबिलिटी लॉ फॉर न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फॉर 20,000 करोड़, 5 ऑफ देम विल बी बिल्ड बाय 2033। तो इंडिया बहुत कुछ कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी को चेंज करने के लिए। ये देखिए, जापान स्विचेस बैक टू न्यूक्लियर 14 इयर्स आफ्टर फुकुशिमा। मतलब 2011 का फुकुशिमा के बाद जापान इज रीएक्टिवेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज दे नाउ नो दैट वाज ऑल मिस्टेक दैट टू शट इट डाउन। एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और सबसे बड़ा एनर्जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया 2 साल पहले। जो 2 साल पहले क्या हुआ आप लोग को पता ही है। 2 साल पहले क्या हुआ है? आ गया क्या? AI आ गया। यहाँ पे हुआ चैट जीपीटी लॉन्च। अब आपको पता है एनवीडिया का क्या हो गया। अब सबसे पहले चाहिए क्या चाहिए? डेटा सेंटर चाहिए। और ये देखिए, ये अमेरिका का स्टैट्स है। डेटा सेंटर एनर्जी डिमांड विल ग्रो फ्रॉम 5% ऑफ टोटल यूएस पावर डिमांड टू मोर देन 10% इन 2030। ह्यूज न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हम लोग को एनर्जी चाहिएगा टू मीट द डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड तो छोड़ दीजिए, जो डेटा सेंटर का डिमांड है उसका इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिमांड का कोई लिमिट ही नहीं रह गया। इतना 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 इलेक्ट्रिसिटी लगेगा कि हम लोग उसको देते देते, ये देखिए एक और देखिए, ये देखिए द एलिफेंट इन द रूम, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर अप 35% सिंस 2022। यहाँ पे चैट जीपीटी रिलीज हुआ है और यहाँ से उसने देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड शूटिंग अप। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैट जीपीटी यूजेस टू रिस्पॉन्स टू प्रॉम्प्ट कैन चार्ज एवरी ईवी for 4 times.
Power 1 lakh US household for 1 year. Supply electricity to Australia for 1.5 days. Charge 223 million iPhones daily for entire year. So हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी का चाहिए था उसका डिमांड और शूट अप कर गया है आफ्टर द लॉन्च ऑफ AI ChatGPT. सो अगर हम लोग को सोल्यूशन चाहिए एनर्जी का सोल्यूशन तो द नेक्स्ट सनराइज इंडस्ट्री हैज टू बी वन एंड ओनली. जो सारा वर्ल्ड देखिए, चाइना देखिए 0 था न्यूक्लियर एनर्जी, वो 460 पे चला गया. जर्मनी उल्टा कर गया, 152 से 0 चला गया कि वहां पे थोड़े पढ़े लिखे आदमी ज्यादा है तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ये है वो है. बट अब सब कोई धीरे धीरे अपना व्यू वापस चेंज कर रहे हैं टू रीस्टार्ट ऑल दिस. तो इसीलिए ये देखिए, यूएस ग्रांट हिस्टोरिक अप्रूवल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी टू इंडिया. इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ट्यूशन. सब कोई को उसको पटाना है. रशिया बोला तुम मेरे से ले ले स्मॉल मॉड्यूलर का. अमेरिका जो कभी अपना टेक्नोलॉजी नहीं देता था वो बोला तुम भी मेरे से ले ले, पहले ले ले. कौन किससे लेगा? अब इंडिया अपना नाकामी दिखा रहा है, बोलता है दोनों तरफ है, देखते किससे क्या मिलता है. तो पॉइंट है, देखिए, द व्हाइट हाउस इज कंसिडरिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन टू स्पीड अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन अमेरिका इटसेल्फ. इन अ सी चेन, Berlin signaled to Paris it will not oppose French effort to ensure nuclear power is treated on par with renewable energy. Germany will no longer block nuclear power, ending a major dispute with it. So everywhere this is happening. So next sunrise industry, वैसे मैं बता देता हूँ, मैं बहुत अर्ली होता हूँ गेम में. मैंने सोलर में 2007-8 में गया था, सब बर्बाद कर दिया. मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2018 में गया था, सब बर्बाद हो गया मेरा. लेकिन तो इसके लिए इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग गेम. मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं 1-2 तो कहीं दिखा रहा था, मैं हटा दिया. स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे को ये लगता है अगर आप रिसर्च करोगे तो सर आपको बहुत सिखा देते हैं, बहुत अच्छा एनर्जी टेक्निकल भी है, फंडामेंटल भी है. तो 5 स्टॉक को लो, 3 उसमें से 0 हो जाएंगे और जो 2 एनर्जी जो निकल के आएंगे वो आपका सब गेम चेंजर हो जाएगा सर. सुपर सुपर. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.